Hello students, in this video lecture we want to study SN2 reaction. In last video we have been seeing about the SN1 mechanism. तो SN1 में देखा अपन ने unimolecular nucleophilic substitution reaction called SN1 in which the rate of reaction depends on concentration of only one reactant. Now in this video we want to see the again mechanism of SN2 reaction. तो पहले what is mean by SN2 reaction definition. SN2 का मतलब क्या? S यानी substitution nucleophilic और 2 यानी biomolecular. तो biomolecular nucleophilic substitution reaction. Biomolecular nucleophilic substitution reaction is called SN2 reaction. Biomolecular nucleophilic substitution reaction is called SN2 reaction. In this, why is it so biomolecular? In this, the rate of reaction and how fast reaction going on. Rate of reaction depends on concentration. This is the important word. Last video में भी मैंने बताया था. This is the important one. Concentration of a two molecules. Biomolecular का मतलब the rate of reaction depends on only two molecules नहीं. Concentration of a two molecules, that is substrate as well as nucleophile. दोनों भी substrate as well as nucleophile. Clear? तो ये हो गया डेफिनेशन. इसके बाद में एग्जाम्पल अब कैसे देखेंगे अपन. एग्जाम्पल दैट इज द alkaline hydrolysis of primary alkyl halide या फिर दैट इज methyl bromide with aqueous NaOH या फिर KOH. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट गिव्स क्या मिलेगा. दैट इज द methyl alcohol. The product is methyl alcohol. Clear? तो alkaline hydrolysis of alkyl halide methyl bromide with aqueous KOH or NaOH. इसके पहले भी देखा अपन ने KOH is a polar solvent ionic, so unsymmetrical breaking of a covalent bond and formation of a nucleophile OH. अब यहाँ पर like that this methyl bromide when heated with aqueous KOH, so what happen here? Replacement of a Br by means of OH, CS3OH or removal of this weaker nucleophile. तो ये हो गया about the reaction gives a product methyl alcohol. अब इसके लिए अपने kinetics लिखना है. It is the biomolecular here. The rate of reaction is directly proportional to the concentration of a two molecules. तो यहाँ पहले लिखा अपन ने that is the rate of reaction depends on concentration of a two molecule, that is R is directly proportional to the concentration of a two molecules like that. ब्रैकेट का मतलब concentration. तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल कौन कौन से आएंगे. सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. तो ये होगा सबस्ट्रेट methyl bromide as well as nucleophile. So what is its kinetic expression? R equal to K into concentration of methyl bromide as well as nucleophile with 2 electrons. Clear? Where K is called velocity constant या फिर rate constant. Clear? अब देखेंगे अपन mechanism. Why is it so? Now the study mechanism. So mechanism, it has one step mechanism. It has one step
मैकेनिज्म। तो SN1 में देखा था अपन ने, दैट इज इट हैज टू स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होने की वजह से देयर आर टू स्टेप वहां पर। तो पहली स्टेप क्या होगी वहां पर, स्लो, और दूसरी होगी फास्ट। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ स्लो स्टेप। और वहां पर एक ही मॉलिक्यूल था, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ओनली एंड नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए उसको यूनिमॉलिक्यूलर बोला है। क्लियर? हाँ। अब यहां पर देखेंगे, इट हैज वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। कैसे देखो, अब फिर से अपन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लिखेंगे जैसा अपन पहले लिखते आ रहे। क्लियर? ये होगा एक ऊपर के प्लेन का हाइड्रोजन, ये होगा डाउनवर्ड प्लेन का हाइड्रोजन, और यहां पर समझो आ गया Br। क्लियर? तो ये होगा मिथिल ब्रोमाइड, दैट इज कॉल्ड ए सबस्ट्रेट। अब न्यूक्लियोफाइल हियर OH अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है। क्लियर? अब इसमें सामने Br से तो अटैक नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ए भी निगेटिवली चार्ज है, ए भी निगेटिवली चार्ज है, या फिर बोथ आर इलेक्ट्रो निगेटिव। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन OH cannot be directly attack on this carbon atom because of a presence of a Br। तो फिर OH क्या करेगा, सामने से अटैक नहीं होता है तो फिर बैक साइड अटैक देखेगा Br के अपोजिट। क्लियर? तो बैक साइड अटैक इज पॉसिबल। यहां पर क्या होगा, बैक साइड अटैक। तो OH अटैक ऑन ए कार्बन ऑफ ए मिथिल ब्रोमाइड इन एन अपोजिट साइड ऑफ ए Br। क्लियर? अब इसमें अपन कंपेयर करेंगे, सपोज यार टर्शियरी, अगर टर्शियरी है तो OH फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि दोनों भी इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से डायरेक्ट अटैक तो पॉसिबल नहीं है। फिर अपोजिट साइड में अटैक करेगा, लेकिन अपोजिट साइड में भी अटैक नहीं कर सकता यहां पर बिकॉज ऑफ ए सच बल्की ग्रुप। बिकॉज ऑफ ए सच बल्की ग्रुप कैसे, एक अपन रफली उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे, एक रफ स्ट्रक्चर लाइक दैट। तो ये हो गया CH3। अब ये दूसरा CH3 लिखेंगे अपन, ये हो गया तीसरा CH3। क्लियर? तो OH को अटैक करने को कहीं जगह ही नहीं है बच्चे। क्लियर? समझ में आ गया? तो ड्यू टू द क्राउडिंग ऑफ ए दिस methyl group, the path by which OH attack on a central carbon atom is blocked. It is called a steric hindrance. तो यहां पर टर्शियरी में स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से पहले स्टेप में OH अटैक नहीं कर सकता, पहले स्टेप में भी नहीं करेगा, दूसरे स्टेप में भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? लेकिन अब यहां पर SN2 में देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस, so this nucleophile OH attack on a carbon of methyl bromide in an opposite side of a Br। Clear? तो gives an intermediate step मिलेगी अपने को। ये होगा H, डार्क रहता है ये दूसरा H। क्लियर? अब सामने आ गया Br और इधर से अटैक हो गया OH। अब दोनों भी निगेटिवली चार्ज है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद के पास खींचेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100%, तो 50% इसके ऊपर आ जाएगी और 50% इसके ऊपर आ जाएगी। क्लियर? अब नाउ दिस सेंट्रल कार्बन एटम इज अटैच्ड बाय हाउ मेनी बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5। सो इट इज एन अनस्टेबल, इट इज कॉल्ड ए ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या लिखोगे यहां पर, that is the nucleophile OH attack on a carbon of a methyl bromide in an opposite side of a Br। फ्रंट साइड से क्यों नहीं अटैक कर सकता, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, एंड गिव्स एन इंटरमीडिएट स्टेट, इट इज कॉल्ड ए ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? तो ट्रांजिशन स्टेट इट इज हाई एनर्जी कंटेंट स्टेट, बिकॉज अनस्टेबल स्टेट, बिकॉज इन विच द
this central carbon atom contain how many bonds? 5 bonds. So in this carbon atom is a pentavalent, so it is unstable. So in order to attain the stability, अब इसमें से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, क्लियर, लेकिन OH इज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद के पास खींचेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट. तो यहां पर अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, ये होगा H, ये होगा दूसरा H, और वो H बैक साइड में अटैक होगा, और प्लस रिमूवल ऑफ ए Br gives a product that is called a methyl alcohol. Gives a product that is called a methyl alcohol. समझ में आ गया? तो यहां पर Br समझो फ्रंट साइड में है, तो OH कहां पर मिलेगा अपने को? बैक साइड में, क्लियर. तो इफ इट इज द लैवोरोटेटरी या फिर इफ इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी अगर कंपाउंड है, यहां नहीं है, लेकिन इन केस इफ the reactant is dextrorotatory, then the product is obtained that is lavorotatory. Clear? So here product is obtained with 100% inversion of configuration. 100% inversion of configuration, and it was given by the scientist Weldon. So it is called a Weldon inversion. क्या बोलेंगे इसको अपन? Weldon inversion. तो SN2 में द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन विच इज, अगर ये रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट लैव मिलेगा, अगर रिएक्टेंट लैव है तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो मिलेगा, क्लियर. और SN1 में रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो लो या फिर लैव रोटेटरी लो, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर, 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लैव, क्लियर. अब इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन देखा अपन ने, क्लियर. वन स्टेप में हाउ मेनी रिएक्टेंट? एक, और ये दो. दिस टू रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट, क्लियर. तो दिस इज द स्लो स्टेप, ये एक ही स्टेप है, तो ये हो गई स्लो स्टेप, क्लियर. सो योर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द स्लो स्टेप. स्लो स्टेप में कितना है? एक है मिथिल ब्रोमाइड और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल. सो हियर rate of reaction depends on concentration of a methyl bromide as well as nucleophile, and hence it is called that is SN2 reaction, in which the rate of reaction depends on the concentration of a two molecule, that is the substrate as well as nucleophile, methyl bromide as well as nucleophile. Why is it so? Because the reaction carried out in a one step. सामने से OH अटैक नहीं कर सकता, लेकिन बैक साइड में तो अटैक करेगा, तो एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, क्लियर. इसके पहले जो देखा आपने SN1 में, ड्यू टू द क्राउडिंग ऑफ एल्किल ग्रुप द बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल. तो क्या करेगा? कार्बन और Br का बॉन्ड ब्रेक करने की राह देखेगा, और वो ब्रेक होने के बाद में फिर सेकंड स्टेप में क्या करेगा? अटैक करेगा. तो टू स्टेप मैकेनिज्म, पहली हो जाएगी स्लो और दूसरी हो जाएगी फास्ट, क्लियर. तो यहां पर क्या लिखोगे फिर? तो व्हाट इज द पार्ट? इट हैज ए वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म. इट इज, वहां लिखा है अपने वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म. तो इसमें क्या होता है? पहला पार्ट लिखेंगे अपन बैक साइड अटैक, क्लियर. तो हियर व्हाट हैपन? इट हैज ए वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, वन स्टेप. तो उसमें लिखा था अपन ने, पहले इसमें ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br, और दूसरे इसमें मेकिंग ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड OH. तो इन वन स्टेप रिएक्शन, दैट इज द, ध्यान में रखने का, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. वहां पर दोनों भी अलग अलग स्टेप में होते हैं, यहाँ पर एक ही स्टेप में. ब्रेकिंग, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? CBr, एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? COH, टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. तो कैसे होता है? तो अपन उसको डिवाइड करेंगे. तो पहला पॉइंट लिखेंगे, एक ही स्टेप में होता है, आपने समझने के लिए अपन 3 पॉइंट पे लिखेंगे. पहला लिखेंगे अपन बैक साइड अटैक, क्लियर. द
न्यूक्लियोफाइल, नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन लेके लिख लेने का, द न्यूक्लियोफाइल OH अटैक ऑन कार्बन ऑफ methyl bromide in an opposite side of Br। समझ में आ गया? क्योंकि सामने से तो अटैक कर नहीं सकता, बोथ आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन सामने से तो अटैक हो नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। और यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की साइज स्मॉलर है, अगर यहां पर तीनों भी अल्किल ग्रुप रहते थे, टर्शियरी थे, तो बैक साइड अटैक भी पॉसिबल नहीं होता था ड्यू टू द क्राउडिंग ऑफ अल्किल ग्रुप। तो हियर न्यूक्लियोफाइल OH अटैक ऑन ए कार्बन ऑफ methyl bromide in an opposite side of a Br gives transition state. It is called backside attack. It is called backside attack. Clear? Attack carbon of methyl in an opposite side called a backside attack. अब दूसरे इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या है वो लिखने का। In this carbon that is central carbon लिखेंगे, central carbon is pentavalent, clear? Hence it is an unstable state, it is an unstable state, clear? इसमें क्या क्या लिखा है उसके बारे में लिखने का। in this both Br and OH are partly bonded to same carbon atom, partly या फिर partially weakly bonded to same carbon atom। ये समझ में आ गया, ये हो गया partial bond, but in an opposite side of each other, bonded to same carbon atom but in an opposite side of each other with partial negative charges। दोनों पे ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? ये यहां पर दैट इज ये पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब तीसरे इसमें क्या आ जाएगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट या फिर मेकिंग ऑफ ए बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br ब्रेक्स कंप्लीटली, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड। सो द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br ब्रेक्स कंप्लीटली। ये जो वीक बॉन्ड है यहाँ जो बताया, ये वीक बॉन्ड ब्रेक्स कंप्लीटली एंड न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड OH gives a product, clear, with 100% inversion of configuration. The bond between carbon and Br breaks completely and a new bond between carbon and OH nucleophile, carbon and OH form and gives a product, कौन सा मिलेगा, that is methyl alcohol with 100% inversion of configuration।
with 100% inversion of configuration, and it is called, this is given by the scientist Weldon, so it is called a Weldon inversion. क्लियर? तो ये होगी इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ख्याल में रखने का, अगर SN1 है, इसके पहले देखा अपन ने, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को? रेसिमिक मिक्सचर. क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर. ये जो रिएक्टेंट है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहो या फिर लैव रोटेटरी रहो, यहाँ पर अपने को 50% डेक्स्ट्रो और 50% लैव मिलेगा. और अगर SN2 है तो अगर डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट मिलेगा लैव, और रिएक्टेंट अगर समझो लैव रोटेटरी है तो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को डेक्स्ट्रो रोटेटरी. क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द SN1 और SN2 मैकेनिज्म. समझ में आ गया फिर कि क्यों SN1 और SN2 होता है? तो ख्याल में रखने का, अगर टर्शियरी कंपाउंड है तो जनरली अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, और प्राइमरी है तो अंडरगो SN2 मैकेनिज्म, और अगर सेकेंडरी है तो गोज आइदर SN1 और SN2 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट ऑन द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, और उसके वजह से व्हाई टर्शियरी अंडरगो SN1 mechanism and primary undergo SN2 mechanism. What is the reaction? What is the reason? Clear? Okay.